For somebody who does not know how casting happens, how would you explain the process? Television, what happens is the number of actors we approach are much more than films, because there are a lot of filters, you know. I mean, once we kind of shortlist the actors, there are the creative team, then there is the production, then there is the channel team. So there are a lot of filters. We discussed this character with almost 40-45 different actors. Oh my God. And then eventually we kind of पत्र लिखा. जब आप 25 ऑडिशन कर रहे हो, उसमें से फाइनलाइज तो एक ही एक्टर होने वाला है, बाकी 24 तो रिजेक्ट होंगे ना. तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा सल्यूट है एक्टर्स को. किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरी डेडिकेशन है. वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि शिद्दत से आप लग जाओ तो होता है, ये होता है, ये फैक्ट है, ये होता है. आई हैव सीन एक्टर्स हु बिकम वेरी डेस्परेट, यू नो, एंड हु शो देयर डेस्परेशन कि भाई मुझे बस काम दे दो, पैसे मत दो, जो करना है करो, मुझे काम दे दो. तो इस डेस्परेशन के साथ, तो जब आप सामने से आप इतने डेस्परेट हो रहे हो, अगर कोई गलत आदमी है आपके सामने, तो वो आदमी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा. हाय, माय नेम इज़ आदित्य सुराना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन midday.com. Hello everybody, welcome to midday.com. On this episode of BTS Stars, I am here with casting director Aditya Surana, who's here with us in the office, who's worked on projects like Nail Polish, Criminal Justice on OTT. He has cast for some 85 TV shows? No, more than 100. More than 100. Oh my God. Thanks for having this conversation, and hopefully people watching will be able to get some, you know, ideas about how casting happens, and maybe some aspirants will be able to take some tips from you about, you know, how to go about it, because there are a lot of people I'm sure you meet on a daily basis who want to make it big in showbiz. Right. But before I talk about those people, let's talk about you. How did you enter this profession? How did casting director become your career? So nothing was planned. I came to Bombay and I was working with an MNC. Okay. And there I met this friend of mine who eventually became a very good friend. He's still a friend. And he was from this field. And initially he got me into direction. Then I started doing a little bit of production with him. Then I started working on this Marathi film, which happened to be, I mean, the producers of the film were, they had a casting agency. And then after that film, they offered me to join them in that agency. And when I got into this agency, I came to know that, okay, there is something called a casting director. Oh. जिनको बहुत पैसे मिलते हैं, जिनको बहुत काम मिलता है, इज्जत मिलती है. And that is how I mean, slowly, eventually I got into casting. I used to assist this gentleman called Harry Parmar. And then I got getting independent projects, and then it's all, I mean, eventually it all started, and here I am. Where are you from originally? I am born in Kolkata, brought up okay. in Kolkata, and then since 2007 I am in Bombay. Okay. Working here. Quite a long time. Yeah. Right. Have you also worked on Bengali projects? Because yes, I have. Saw yes, something I have. on your social yes, media. I have. There is, last year only, there is this film called Paria which is released, which is about street dogs. And yes, I was a part of that film as well. Oh, so you do have like worked across industries. Yes. That way. Majorly Hindi, Bengali, yeah, thoda bahut. Thoda bahut. Yes. Right. For somebody who does not know how casting happens, how would you explain the process? बहुत simplified तरीके से बताता हूँ. So basically, once we have the script, the basic brief of what the story is, what are the characters, once we have that, we discuss. I mean, we have 2-3 rounds of meetings with the directors, with the team, the producers, onto what kind of faces and what kind of genre of actors they are looking at. And because, you know, I mean, it all depends that how big the project is, because accordingly you talk to actors, you get in touch with actors. There are actors who are not very, I'll not say, I mean, there are actors who are very experienced, so they come with a different thought process and different commercial angles as well. I mean, the economics of it. Right. And so once that is clear, then we start approaching actors. Right.
कई बार हमको कुछ नोन एक्टर्स चाहिए होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें वो हमेशा हमको बोलते हैं दैट वी नीड समवन जिसका कोई इमेज नहीं है. Right. So for that we approach new actors, fresh actors. There is a process of auditioning. There are 2-3 rounds of auditions, and once that is done, we kind of figure out कि हाँ चलो हमने अगर इन 10 actors को audition किया है उनमें से शायद 4 हमको बहुत अच्छे मिलते हैं या 5 बहुत अच्छे मिलते हैं, and उनके साथ फिर हम there is a meeting with the director where he kind of explores कि हाँ भाई मेरे को इस एक्टर से और क्या क्या मिल सकता है, कितने रंग है इसमें, वो सब समझ में आता है उसको. एंड देन इवेंचुअली वी काइंड ऑफ लाइक आफ्टर गुड, it all depends, but normally it takes at least 1 month to maybe 45 days or 60 days to kind of finalize the whole cast of a film. Does it differ if it's a television show or it's an OTT project? I think no. Almost the process is same, but in television, what happens is the number of actors we approach are much more than films, because there are a lot of filters. Once we kind of shortlist the actors, there are the creative team, then there is the production, then there is the channel team. So there are a lot of filters. To cross all these filters, you need more number of actors, so that even everyone because everyone has their own vision for a character. They have different thoughts that okay, how am I looking at this character? So once everything comes together, once all these filters they are on the same page, then we kind of finalize the final cast. Then we have the final cast on board. So yes, in that's television, for TV shows. That's for TV shows. That's for TV shows. In films, it is obviously a little more easier, because there the captain of the ship is the director. Okay. So once the director is convinced, your work is done. But in television, there are, as I said, there are 3-4 filters. So we need more number of actors to actually reach to that point where someone is at the authority to finalize these actors. So in television, the process is longer and a little more hectic. What is the biggest challenge for a casting director? I think it is to get to get someone who's not established, but he or she has got the potential to make it big. So to kind of figure out this, it takes a lot of time, because there are a number of meetings, there are a round of discussions, one-on-one discussions. Only after that you kind of understand, okay, हाँ कि भाई इस बंदे में वो fire है, and he's got that knack of it, and he can deliver what we eventually want. Right. So yes, that is a challenge. Right. हमको अगर daily 100 actors मिलते हैं तो उसमें से शायद 3 ही ऐसे मिलते होंगे जिनके पास ये potential है कि वो they can make it big. So yes, that is something which takes time and which takes a lot of experience also, because what happens, जब मैं नया आया था तब मुझे obviously ये सारी समझ नहीं थी. तब हम जब एक्टर से मिलते तो हमको हर एक्टर अच्छा लगता था, बट फिर वो धीरे धीरे समझ में आया कि आप जब ऑडिशन करते हो, अच्छा हर कैरेक्टर हर एक्टर के लिए नहीं होता, शायद होता है, बट अगेन दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. नॉर्मली इन फिल्म्स व्हाट हैपेंस इज हमारे पास बहुत सारा वक्त होता है, हमारे पास बाउंड स्क्रिप्ट होती है, तो हम किसी भी एक्टर को वो स्क्रिप्ट देकर ये बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास 15 दिन है, तैयारी करो. You read the whole script, you get into the skin of the character, you have time. But normally, and as they say, time is money. So normally in web and in television shows, ये time नहीं होता हमारे पास. Okay. So वहाँ पर हमको ये काम करना पड़ता है कि हमको ये figure out करना पड़ता है कि अगर मेरा character blue, black, red है, तो कौन सा ऐसा actor है जो शायद real life में blue, black और red है. Okay. आपको वो समझना पड़ेगा, so that आपका काम easier हो जाए और faster हो जाए. Right. Because अगर मैं एक एक्टर हूँ और मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं शायद किसी भी कैरेक्टर में घुस जाऊंगा, बट अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उसी कैरेक्टर को इजीली प्ले कर पाऊंगा जो शायद मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, या जो शायद मेरे अंदर है, या जो मैं नेचुरली जैसा हूँ. Right. अब अगर मैं सपोज इफ एग्जांपल इफ आई एम समवन हु इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु नोज दैट लैंग्वेज, एंड अगर मुझे वैसा ही कैरेक्टर मिल गया तो मैं उसको बहुत इजीली प्ले कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत ईज हो, मतलब बहुत आसान हो जाएगा. बट if I'm from Jammu and you give me a character who's from Tamil, who's from South, obviously उसको time लगेगा. So ये time जब नहीं होता है हमारे पास, that is where a casting director comes in the picture. That is where his expertise is used. कि हमारे पास time नहीं और हमको सही actor चाहिए.
Right. तो इसके लिए एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों से मिलता रहे. You kind of meet lot of, you will have to meet lot of actors every day Right. to understand, okay, what they are, you know, who they are actually. Right. Once you know that, then you'll be able to audition them for the right characters. So yeah, that is Right, how it right. is. Any project that you can talk about which has been a challenge to cast for? Something that's out and you can Nail talk Polish about. was, Okay. I'll tell you, Nail Polish is a film called on Z5, starring Manav Kaul, Arjun Rampal, Anand Tiwari, Rajit Kapoor, and in that particular film, it is basically a film which is based on a dual personality. Right. Manav Kaul is playing a character where he's someone else, and later in the second half of the film he's someone else. In fact, he starts behaving like a woman. Oh. The woman who was his ex-girlfriend. Okay. एंड सो वहाँ पे हमारा चैलेंज ये था कि हमको जो भी वो जो फीमेल एक्टर कास्ट करनी थी वो ऐसी करनी थी, वो हमको बहुत जल्दी करनी थी कास्ट, बिकॉज उसके एट्रीब्यूट्स है जो मानव विल पिक अप, यू नो, हर बॉडी लैंग्वेज, द वे शी टॉक्स, द वे शी स्पीक्स. सो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमको एक ऐसी एक्टर चाहिए जो, अच्छा कहानी कश्मीर की थी, तो हमको एक ऐसी एक्टर चाहिए थी जो कश्मीर से हो, एंड जिसमें वो कश्मीर का वो जो नयापन होता है ना, एक मतलब कश्मीर बहुत वो जो कश्मीरियत होती है वो रहे उसमें. सो एंड हमको शूट करना था बॉम्बे में. हमको हमारा कश्मीर बॉम्बे में बनाना था. बॉम्बे या हम इवेंचुअली हमने उसको महाबलेश्वर में शूट किया. तो उसके लिए हमको एक ऐसी एक्टर चाहिए थी, एंड दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. In fact, then there is a film called Badnaam Gali on Z5, starring Devendu Sharma and Patralekha Paul. Even that film we took a lot of time because obviously commercial aspect एक होता है कि आप एक film बना रहे हो, एक OTT platform के लिए बना रहे हो, तो there is a commercial angle, you know, attached to it. So we had Devendu on board, and Patralekha, for that we wanted a girl who's Bengali and who can you know who's very bindas. वो दिल्ली के एक ऐसे मोहल्ले में जाकर रह रही है जहाँ पर लोग सबके बारे में बातचीत करते हैं. वो जो मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं वो बैठ के बात करती हैं, एंड शी इज प्रेग्नेंट, एंड उसका फादर कौन है वो किसी को पता नहीं. तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, यू नो, उस मोहल्ले के लिए. हाँ, इवन दैट लाइक कास्टिंग Patralekha for that was it was quite hectic. It was a very long journey, you know. We kind of had a word with we discussed this character with almost 40-45 different actors. Oh my God. And then eventually we kind of got Patralekha. Wow. Okay. That's a lot of conversations. Yes. And explaining Yes. character and storyline. Yes, it becomes very tiring because आपको एक ही किरदार 40 अलग-अलग लोगों को बताना होता है. Oh God. तो but हाँ, I think now so I mean all thanks to my luck and the people around, because now, you know, once I've started doing OTT web shows and OTT films and even feature films. So now you have at least in every 3-4 months you have something new to work on, and you have something different to work on. So that interest is, you know, intact. Right. कि आप जब सुबह उठते हो और आपको वो मोटिवेशन चाहिए होता है ना कि आज जाकर कुछ नया करना है, वो मोटिवेशन अब मिलने लगा है. All thanks to these OTT stuff. Does television get repetitive? Yes, obviously. I mean, because the process is very, as I said, it is a very long process. Right. And वो जो procedure है वो बहुत एक standard procedure है जो हमको follow करना ही है. Right. हमको ऑडिशंस करने ही हैं. कई बार ऐसा होता है कि हमने जो पहले राउंड में जिनको ऑडिशन किया होता है हम उसी को लॉक करते हैं, बट वो करते हम 2 महीने बाद है. तो वो जो 2 महीने है, उस 2 महीने में हमको और मे बी और 100 एक्टर्स को ऑडिशन करना है फॉर द सेम कैरेक्टर. Is there a typical kind of like a person that TV show makers demand or channels demand कि इस तरीके का एक्टर चाहिए, because they need to have a more of a like a commercial connect, if I am not wrong. So नहीं, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि आपको you need to have great screen presence obviously, and you need to be very, I mean you should be very confident. Okay. Because literally, as I said, there is no time, you know. So once the actor is finalized and once he or she is on air,
in between they need to, I mean, there is a very little bit of time for him or her to get into that character. Right. So while auditioning, the only thing what we kind of look for is how comfortable he or she is with and this is especially about new actors. And normally टेलीविजन में होता भी यही कि आपको हमेशा ये बोला जाता है कि हमको ऐसे चेहरे ला कर दो जिनकी कोई इमेज नहीं हो. अब वो ऑब्वियसली कोई नया एक्टर होगा. फ्रेशर्स के साथ सिर्फ हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि while auditioning that how comfortable they are with that atmosphere, you know, because 50 लोग हैं आपके सामने सेट पे और आपको उनके सामने जाकर परफॉर्म करना है और आप उन 50 लोगों में से किसी के भी साथ फेमिलियर नहीं हो. तो लिटरली एक नई जगह है और उस नई जगह पे जाकर आपको कुछ भी करना है. आपको डायरेक्टर ने बोल दिया भाई तुमको चांद दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा कहीं दूर दूर तक, शायद बल्ब लगा होगा, बट आपको उसको चांद फील करके इमेजिन करके आपको परफॉर्म करना है. सो how comfortable with you are with camera, with the atmosphere, with 50 people around and no one is familiar to you, and how confident you are कि मैं कर लूँगा. Because अगर ये दो चीजें हैं ना तो बाकी सारी चीजों पे आप काम कर सकते हो. Right. I mean you have time कि आपके पास एटलीस्ट जब आप एक्टर फाइनलाइज करते हो उसके बाद एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन तो मिनिमम होता है कि आप फ्लोर पे जाते हो. Right. तो वो जो 1 week 10 days है, you know, you can have workshops, you can teach the dialect of the character. ये सारा करने का वक्त होता है. Somebody who's a fresher doesn't even know how to face the camera. I mean उसको तो technical know how कुछ है ही नहीं. तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होती है. वहाँ प्रॉब्लम होती है. And so you have to be a part of that process where yes. Okay. At least you know once at least the internal team is convinced कि हाँ ये हमारा character है. तब तक there are n number of auditions, different so maybe 4 different scenes, you know, कि कोई है जिसमें आप बहुत इमोशनल हो, कोई हो जिसमें आप बहुत फुल ऑफ लाइफ और बहुत ही हैप्पी मोमेंट है, कोई है जहाँ पे आप बहुत इंटेंस हो और आप लिटरली मतलब यू नो आपके लाइफ में शायद इस कैरेक्टर का मे बी किसी की डेथ हो गई और आपको वो सब करना है. और कोई नया एक्टर है मतलब जिसने शायद इससे पहले इतने रंग लाइफ में जिए ही नहीं है. तो वो जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पर आप 3-4 अलग अलग ऑडिशंस करते हो, अलग अलग सीन्स करते हो, उनको वो मूड समझाते हो. तो यस दिस इज quite a tedious process. Yes, it is. Also, this process of auditioning, especially in terms of films, it's a very new concept in India. I mean, it's not been very long. I mean, earlier, I guess, casting used to happen a little differently. So, I think the process is all the same, but it is just that, I mean, so there are 2 set of actors, right? One are the actors who are known, who have experience, and people know them. सो उनके साथ आपको ये पता होता है कि हाँ भाई अगर इनको हम बताएंगे कि भाई हमको अब ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, वाइट चाहिए, वो कर सकते हैं वो. इनफैक्ट मतलब द अदर डे आई सॉ दिस समवन सेंड मी इन आई वाज वर्किंग विद आशुतोष गोवारिकर सर ऑन समथिंग एंड तब मुझे पता चला कि स्वदेश के लिए गायत्री had auditioned the actor in Swades opposite Shahrukh. She literally auditioned for it. In fact, the video is there on YouTube right now. I think the audition process was always there, but obviously now it has become more systematic. Right. Because as you know, this casting director culture, this also came in the picture in the last 10, 15, 20 years. No, not even 20 years, like 10-15 years. उसके पहले casting directors भी कहाँ होते थे. वो तब से होने लगे. And अब obviously चूँकि ये web आ गया है और इतना सारा there is so much of work happening. Because of that, you know, there is a dedicated department to it. Right. Which is the casting department or which is the casting director working on a thing. So this is because I think there is so much of work happening and obviously आपको चीज़ों को streamline करना ज़रूरी है. मतलब एक director एक time पे हर जगह नहीं हो सकता. उसको अपने लोकेशंस भी देखने हैं, उसको स्टोरी भी देखनी है, स्टोरी का फ्लो भी देखना है, स्क्रीन प्ले भी देखना है, सब देखना है. सो ऑब्वियसली दैट इज व्हाई आई थिंक दीस कास्टिंग डायरेक्टर्स दे केम इन द पिक्चर एंड थिंग्स आर गुड. आई मीन थिंग्स आर क्वाइट गुड नाउ. मतलब मैं बहुत सारा काम है मेरे पास एंड आई बिलीव बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास है, तो हमको काम भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है. That's good. On an average, on a day, when you're casting for a show or a film, how many people do you audition?
How many auditions do you take in a day? So normally when it is television, दिन के 20-25 ऑडिशंस होते हैं. Okay. When it is films, दिन के 7-8 होते हैं. It all depends how many characters are there और हमारे पास टाइम कितना है. नॉर्मली जैसे अभी मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ जिसकी हमको शूटिंग करनी है अक्टूबर में. 3 मेन किरदार हैं फिल्म में. 2 छोटे बच्चे हैं और एक पुलिस कांस्टेबल है who's around 45-50. तो बस ये 3 ही किरदार हैं. तो हम लिटरली डेली 2 ऑडिशन करते हैं, 3 ऑडिशंस करते हैं. तो वैसा चल रहा है. Kids must be a little yes, more yes, difficult. yes, yes. अरे हाँ, that is वो मतलब किड्स वाला सीन ही अलग है, वो गेम ही अलग है. बिकॉज आपको उनको ना बहुत ही हैप्पी प्लेस में रखना पड़ता है वेल ऑडिशनिंग. क्योंकि बच्चा है, उसको अगर कुछ पसंद नहीं आया वो रो देगा या वो बोल देगा मेरे को नहीं करना. क्या कर लोगे अब आप? कुछ नहीं कर सकते आप. तो उसको बहुत ही पैम्पर करके, बहुत ही प्यार से, बहुत ही हैप्पी मोमेंट में कि भाई सब ये तेरा ही घर है, सब कुछ, इट इज ऑल योर्स, इट इज योर प्लेग्राउंड, डू व्हाट यू वांट टू. आपको बहुत उसको कंफर्ट जोन में रखना पड़ता है. बहुत पेशेंस भी चाहिए. बहुत ज्यादा. राइट. बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा. राइट. बट टैंट्रम सिर्फ बच्चे थ्रो करते हैं या बड़े भी करते हैं? सभी मैं इसको टैंट्रम्स नहीं बोलूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना, वो कहीं ना कहीं यू गिव इट बैक. ओके. सो आई नो एक्टर्स जो पहले बहुत अच्छे थे, वो शायद वो इंसान अच्छे थे, बट उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए उसके साथ वो वैसे हो गए हैं अब वो जैसे हैं. मतलब ना अब वो हर एक चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं आपको, डायरेक्टर को, पूरी टीम को, कि भाई ये चीज़ ऐसे हुई या नहीं हुई, ये मुझे ऐसे चाहिए थी, ऐसे आई नहीं कि नहीं आई. बिकॉज क्या होता है कि जब आप इनिशियली आते हो तब एक्चुअली ओपन टू मोर पॉसिबिलिटीज आई गेस. हाँ, एंड प्लस नहीं जब आप नए आते हो तब आपको ना दबाया भी बहुत जाता है एक तरीके से. क्योंकि आप नए हो. वो शायद हम सबके साथ हुआ होगा, हमारे अपने अपने प्रोफेशंस में. आई एम श्योर वो आपके साथ भी होगा. मेरे साथ भी जब मैं नया आया था तो मुझे टारगेट दे दिया जाता था कि भाई हमको शाम तक इतने ऑडिशन चाहिए. और अब ये तो कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, हमको नहीं पता. मतलब मेरा बॉस मेरे को ये बोलता था और मेरे को करना होता था. बिकॉज आई थिंक शायद इंसान सीखता भी वैसे ही है. तो एक्टर्स के साथ भी होता है, जब वो नए आते हैं तो उनको बहुत प्रेशराइज किया जाता है कि आपको दिन में 16 घंटे शूट करना ही है. तब उनको रूल्स नहीं पता होते कि एक एक्टर नॉर्मली 12 घंटे शूट करता है, आप 12 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते शूट. या अगर आप मना कर दोगे तो सामने वाले को मतलब सामने वाला आपको रोक नहीं सकता. ये सब ऑब्वियसली जब हम नए होते हैं हमको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होते हैं तो ऑब्वियसली लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं. एंड देन इवेंचुअली फिर जब हम थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उसके बाद या तो 2 चीज़ें होती है. या तो हम बहुत ज़्यादा रेबेलियस हो जाते हैं कि नहीं ये मेरे को ऐसे चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं. या हम बहुत शांत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, चल रहा है, प्रोसेस है, चलने दो. तो ये दो ही चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से. मतलब या तो इंसान बहुत काम हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है. Okay. Also, on a daily basis, how many freshers do you get approached by for opportunities in films? I'm sure. How do you deal with, say for example, even if it's an experienced actor who's done some work, if you've auditioned them and then they've not really passed, they don't really suit the character, that rejection, because we see actors talking about rejections all the time, मैंने 400 auditions दिए, इतने auditions दिए, नहीं हुआ मेरा and all of that, and those become stories later on when they become big. But for you dealing with that, that's also a very emotional situation for. So first of all, इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि I literally salute these actors, क्योंकि आई थिंक दिस इज दी ओनली प्रोफेशन जहाँ पर आपको डेली रिजेक्शन झेलना होता है. डेली. और किसी प्रोफेशन में हम डेली नहीं झेलते. चलो 4 महीने में हमने जॉब स्विच की, तब हमने एक इंटरव्यू दिया और हम नहीं हुआ तो वो एक रिजेक्शन समझ में आता है. बट एक एक्टर डेली झेलता है. एंड जितना कम एस्टैब्लिश एक्टर उतने ज्यादा रिजेक्शंस. क्योंकि जब आप बहुत एस्टैब्लिश होते हो तो मेकर्स को भी पता है कि हम किसको अप्रोच कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं. मेकर्स भी उनको बहुत सीरियसली लेते हैं कि भाई हम एक बहुत सीनियर एक्टर को अप्रोच कर रहे हैं अगर. तो जैसे एक फिल्म है मेमोरी एक्स, उसमें उसके लिए हम विनय सर हैं उसमें, विनय पाठक, जो कि एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हैं. और जब हम उनको अप्रोच कर रहे थे हमको पता था कि अगर वो मान जाते हैं तो हमको इनको लॉक करना है. राइट. बट ऑब्वियसली उस फिल्म में जो बाकी कैरेक्टर्स थे उसके लिए हमने किए 25 ऑडिशंस किए. अब जब आप 25 ऑडिशन कर रहे हो उसमें से फाइनलाइज तो एक ही एक्टर होने वाला है. बाकी 24 तो रिजेक्ट होंगे ना.
तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा सल्यूट है एक्टर्स को कि वो डेली इस चीज़ को झेल कर दे आर स्टिल मोटिवेटेड कि है नहीं फिर भी हमको करना है। मैं ये बहुत एक्टर्स को बोलता भी हूँ कि मतलब वो कहते हैं ना कि आप मतलब मैगी 2 मिनट में बन जाती है बट बिरयानी को 4 घंटे लगते हैं। राइट। तो आप जितना ज़्यादा ये रिजेक्शन प्रोसेस को झेलते हो शायद आप उतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते जाते हो और क्लियर होते जाते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और एक्चुअली मैं कौन हूँ। ये भी एक्टर्स को समझ में आता है ना जब आप ऑडिशन करते हो। अगर आपने एक ऐसा ऑडिशन किया, एक ऐसा कैरेक्टर को प्ले किया जो शायद आपने कभी आज तक सोचा भी नहीं होगा, जब आप वो करके ऑडिशन करके निकलते हो तो आपको जब वो ऑडिशन आप बाद में खुद देखते हो तो आपको लगता है नहीं यार ये चीज़ मैं ऐसे कर सकता था, नहीं यार ये चीज़ मैं ऐसे नहीं कर सकता था और मैं शायद इस किरदार के लिए बना ही नहीं हूँ। जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर मैं एक जम्मू के बंदे को तमिल कैरेक्टर दे दूँ, तो हालांकि वो बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, मतलब कैरेक्टर्स तो में हज़ारों रंग होते हैं, हज़ारों लेयर्स होते हैं। तो ये एक्टर्स को भी समझ में आने लगता है वक्त के साथ साथ। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 400 रिजेक्शंस यू नो व्हाट यू कैन डू और यू काइंड ऑफ सकम टू इट, कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा। तो एंड वो भी बहुत वाइजनेस चाहिए उसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि एक्चुअली क्या आप कर पा रहे हो या आप नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट मैं बहुत नोन एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स को जानता हूँ जिनको भी बहुत रिजेक्शन झेलने होते हैं। अभी जो हम ये जो टेलीविजन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अब उस एक नॉर्मल टीवी शो कम से कम 200 ऑडिशंस होते हैं। कितने कैरेक्टर्स के लिए? 15-20 कैरेक्टर्स के लिए। तो अब जो मतलब 200 में से लॉक तो 15-20 ही होते हैं, बट वो जो बाकी 180 एक्टर्स हैं उसमें से कम 40% एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत नोन हैं, जिन्होंने काफ़ी सारा काम कर रखा है, बट उनको भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है। मतलब मैं इसको ऐसे भी बोलूँगा कि वो रिजेक्शन तो वो झेलते हैं, बट मेरे ख्याल से ये एक प्रोसेस ही है ऑफ दिस फील्ड, ऑफ दिस प्रोफेशन एक्टिंग। आपको वो करना ही है, आपको डेली ऑडिशन करना ही है। एक तरीके से वो आपका रियाज भी हो रहा है, एक तरीके से वो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, एक तरीके से आपको भी ये समझ में आ रहा है कि अगेन कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, कौन सी चीज़ में और बेहतर कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका ना एक सेल्फ एक्सरसाइज चल रहा है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि ये प्रोसेस हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि ये आपको और बेहतर बनाता है। एज एन आर्टिस्ट आप और बेहतर बनते हो। How much freedom do you get as a casting director to decide कि this actor suits this character? Now it's been almost 16 years that I'm doing this. अब मुझे वो फ्रीडम मिलने लगा है, because with years जब आप किसी के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हो तो एक तरह का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। मतलब मेरे डायरेक्टर्स को या मेरे प्रोड्यूसर्स को जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, अभी एक प्रोड्यूसर है जिनके साथ मैं 2010 से काम कर रहा हूँ, 14 साल हो गए। अब उनको मेरे पे ट्रस्ट है, तो वो मेरे को वो वाला फ्रीडम दे देते हैं कि आदित्य तेरे को कौन ठीक लग रहा है, तू बता कि ये 4 में से कौन बेस्ट है, तूने कैरेक्टर पढ़ा है, तुझे कौन बेस्ट लग रहा है। तो ये मतलब ये आई थिंक दिस टेक्स टाइम एंड टाइम के साथ साथ ये भी कि जब आप किसी के साथ आपका एक कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है। अगर आप और मैं सालों से काम कर रहे हैं साथ में, तो आपको पता होगा कि इस चीज़ पे आदित्य कैसे रिएक्ट करेगा और आपको पता होगा कि आदित्य इस चीज़ में अच्छा है या नहीं। तो जब आपको ये पता है तो आप थोड़े से यू टेक अ बैक सीट कि हाँ चल आदित्य संभाल लेगा, क्योंकि आपको पता है, आपने आदित्य को काम करते हुए देख लिया इतने सालों से। तो वो आई थिंक वो उसी पे है, मतलब फ्रीडम मिलती है, बट वो फ्रीडम आपको डे वन नहीं मिल सकती ऑब्वियसली। You have to earn it. Yes. ये जो also it's a huge responsibility. I'm sure first of all you're deciding someone's career and you're also deciding नहीं sorry मैं आपको काट रहा हूँ, but no one is deciding anyone's career. Okay. Either you have it in you or you don't have it in you. Okay. तो अगर वो आप में है, आज आप एक ऑडिशन करोगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे, बट कल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बिकॉज यू हैव इट इन। तो हम बनाने वाले कोई नहीं है, बट अगर आपने ऑडिशन अच्छा किया है तो मैं क्यों आपके ऑडिशन को रिजेक्ट करूंगा, या कोई भी आपके ऑडिशन को क्यों रिजेक्ट करेगा। अगर आप वो जो कैरेक्टर का ढांचा है, वो विजुअली कैसा दिखना चाहिए, उसके जो फिजिकल अपीयरेंस, अगर आप उसमें मैच कर रहे हो
और आप परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हो, तो मैं आपको क्यों मना करूँगा। मतलब ऑब्वियसली ये होता है कि हाँ, जो कि टीवी का प्रोसेस है, चूँकि देयर आर 6 अलग अलग लोग हैं, सब अपनी अपनी राय रखते हैं कि भाई मुझे ये एक्टर अच्छा लग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा है। तो उस प्रोसेस में ये जो इतने सारे एक्टर्स रिजेक्ट हो जाते हैं, वो सिर्फ उस प्रोसेस में होते हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कई बार नंबर ऑफ डेज, बिकॉज टीवी का क्या है, बहुत ही लंबा कमिटमेंट देना है आपको, तो कई बार डेट्स की इशू हो जाती है, कई बार बजट्स, बिकॉज टीवी आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बजट्स को दिमाग में रखकर कास्टिंग करनी है। तो वो सारी चीजें भी यू नो दीज फैक्टर्स कम इन द पिक्चर, एंड उस वजह से बहुत सारे एक्टर्स रह जाते हैं। बट वो रह जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टर्स बुरे हैं या वो ये नहीं हुआ वर्कआउट, कुछ और होगा। मैं जैसे मैं आई नो एक्टर्स जो कि आज से 10 साल पहले दे यूज्ड टू चार्ज लाइक व्हाट मे बी 80-85,000 रुपीज पर डे, एंड आज की डेट में वो एक्टर्स 20,000 में काम कर रहे हैं। देन आई नो एक्टर्स जो कि आज से 10 साल पहले 4,000 पे काम करते थे, आज वो 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। सो ये आई थिंक इट इज़ सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और एज ए सेट हम किसी का करियर सेट नहीं कर रहे वो उनकी मेहनत है, वो उनकी किस्मत है, और वो उनकी लगन है। एंड ये बात मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरी डेडिकेशन है, वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि शिद्दत से आप लग जाओ तो होता है, ये होता है, ये फैक्ट है, ये होता है। तो अगर आप लगे हुए हो और आप में इतनी समझ है कि आप समझ पा रहे हो कि मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, और आप उन पे काम कर रहे हो, तो इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट होगी। एंड ये सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। मतलब ये आपका जो प्रोफेशन है, या यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनका जो भी प्रोफेशन है, अगर आप यू आर गुड इन इट, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। So it's the talent that decides. Yes, totally. Right. Talent and obviously the presence of mind. Right. कि आपको कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ कितना बोलना चाहिए, कहाँ आपको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट बॉटम लाइन इज टैलेंट। राइट। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली होना ज़रूरी है, बट टैलेंट नहीं है तो ये सारी चीज़ें होकर भी थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम है। People also talk about making connections, networking, hanging out with the right people. Do those things come into play? Or I mean, say for example, if you're looking for a certain character and आपको बोला है कि इसके लिए actor ले आओ, and maybe you're not being able to find anybody in your, and how do you find them? Where do you find them? बहुत बार ये होता है कि मतलब मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मैं दुनिया भर का कंटेंट देखता हूँ। मैं कोई बुरी से बुरी फिल्म और अच्छी से अच्छी फिल्म में कोई नहीं छोड़ता। इनफैक्ट फिल्म्स इन अदर लैंग्वेजेस, बंगाली, मलयाली। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक मलयाली फिल्म देखी जो अब हिंदी में भी आ गई है, बट वो हम ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको अलग अलग कैरेक्टर्स पता चलते हैं, और फिर जब आप लोगों से मिलते हो तो आपको ये भी समझ में आता है कि वो इंसान कैसा है, राइट, वो कौन है। मतलब शायद ह्यूमंस की ना विजुअल मेमोरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अगर किसी चीज़ को एक बार देख लेते हो, आप उसको नहीं भूलते। आप नाम भूल सकते हो, आप बाकी चीज़ें भूल सकते हो, बट अगर आपने कुछ देखा है आप उसको नहीं भूलोगे। तो या एटलीस्ट मेरे साथ तो ये है कि अगर मैंने कुछ विजुअली देख लिया ना तो मैं वो नहीं भूलता। अगर मैंने किसी का ऑडिशन देख लिया और ऑडिशन अच्छा हुआ है तो मुझे वो याद रह जाता है। मेरे को उस एक्टर का नाम भूल जाऊंगा, मैं अपनी टीम को ऐसे बोलूँगा कि यार वो उस दिन ना एक बंदा आया था, उसने ना येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और उसने उसमें एक ऑडिशन किया था, और ये वाला स्क्रिप्ट उसने ऑडिशन किया था, ये वाला कैरेक्टर उसने ऑडिशन किया था। तो हम उस कैरेक्टर के सारे ऑडिशंस निकालते हैं, उसमें वो हमको बंदा मिल जाता है। एंड ये सिर्फ मैं नहीं, हमारी मतलब मेरे साथ और 7 लोग हैं मेरी टीम में, और हम सब यही करते हैं। And you save all the tapes. Yes, we have to, and we continuously have to meet new people, new actors every day, and उनसे बैठ के हमको बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे हमको नहीं पता चलेगा सामने वाला है कौन, और अगर हमको वो नहीं पता तो हम कास्ट कैसे करेंगे। तो वो एक प्रोसेस है, और वो ऑब्वियसली मतलब एज आई सेड कि डायरेक्टर के पास 1000 चीज़ें करने को, इसलिए शायद कास्टिंग डायरेक्टर्स को काम मिलने लगा है कि भाई तुम्हारा काम कास्टिंग है, तुम एक्टर्स ढूंढोगे और तुम हमको एक्टर्स लाके दोगे, तो हमारा काम है, हमको वो करना ही है। तो you put out casting calls anywhere? Yes, we do. Yes, we do. Social media, then word of mouth. फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि अब चूंकि आपको टाइम हो गया तो आपके बहुत सारे कनेक्शंस हैं, तो आप जैसे 4 there are these acting institutions, वहाँ पे जिनको आप जानते हो आप उनको फोन करके बोल देते हो कि भाई मैं एक नया चेहरा ढूंढ रहा हूँ, ऐसा इसके लिए। And where do you hold the auditions?
Normally, so I mean, there are independent studios also in Oshiwara, in different parts of Bombay. But normally we do it, the particular company we are working for, उनके premises में, because कई बार क्या होता है, उनके लिए थोड़ा सा ये होता है कि भाई हमारी स्क्रिप्ट बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि obviously उनका कंटेंट है, अगर वो बाहर चला गया तो there is a possibility कि उसको कहीं कोई और misuse कर ले. So normally we do it in their premises, or we do it either जैसे I have my own studio, तो मैं वहाँ पे बुलाता हूँ एक्टर्स को, मैं वहाँ ऑडिशन करता हूँ. So it all depends on project to project or producers to producers how they want to go about it. Right. Some people are very secretive कि नहीं भाई हमारी स्क्रिप्ट बाहर नहीं जाएगी. एक्टर को यहाँ बुलाएंगे, एक्टर को बोलना 5-6 घंटे लेकर आए, पहले हम उसको ब्रीफ करेंगे, उसको स्क्रिप्ट देंगे, फिर उसको 2 घंटा हम यहीं छोड़ देंगे कि भाई जाओ चाय वाय पियो, प्रिपेयर करो, 2 घंटे बाद हम ऑडिशन करते हैं. कई बार वो प्रोसेस होता है, कई बार ये होता है कि आप अपनी स्क्रिप्ट दे सकते हो उनको, तो हम भेज देते हैं उनको. अब तो डिजिटल इंडिया है, तो कई बार लोग ऑडिशन अपने घर से रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, या वो जहाँ भी है वहाँ से रिकॉर्ड करके भेज देते हैं. तो वैसे. Any fresher you can name who you cast in a project and is doing really well right now? बहुत सारे. There's this guy called Randeep Rai. We did a show called ये उन दोनों की बात है उन सोने, which was about these 1990s का प्यार, उस पे based एक कहानी थी. उसमें जो था, he is doing good. There are a lot of actors. अब मैं सच बताऊं तो मेरे को अभी exactly ऐसे नाम भी याद नहीं आ रहा. Okay. You've cast for so many projects. हाँ जी. Right. एक और चीज, of course, when you talk about casting, some people open up about much later in their career is the casting couch. But how much of a reality is it? Has that thing gone away because casting directors have come in and the casting process is a little more transparent? Obviously things are getting better, but as I said, I think I think this is there in almost every field. Okay. I mean, I have a friend who works with this multinational bank. So वो मेरे को बताती है कि when she started off, उसको कॉर्पोरेट्स में भी ये सब बहुत कुछ देखना और झेलना पड़ा. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह है. ऑब्वियसली क्योंकि हमारा ये जो पूरा सेटअप ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है, तो यहाँ की चीज़ें भी ज़्यादा बाहर आती है. बट और फिर मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगा ये कि मतलब even actors need to be very careful. So I have seen actors who become very desperate, and who show their desperation कि भाई मुझे बस काम दे दो, पैसे मत दो, जो करना है करो, मुझे काम दे दो. तो इस desperation के साथ तो जब आप सामने से आप इतने desperate हो रहे हो, अगर कोई गलत आदमी है आपके सामने, तो वो आदमी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, either monetarily or in some other way, तो थोड़ा सा मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि even actors they need to be very careful while talking to people, and you can't show your desperation. I mean, आपको किसी ने इनविटेशन देके नहीं बुलाया था इस शहर में कि आओ एक्टिंग करो. आप खुद आए हो, अपनी मर्जी से आए हो. तो आए हो तो आपको 4 अच्छे लोग मिलेंगे और 4 बुरे लोग मिलेंगे, और उनसे कैसे डील करना है वो आपको समझना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा. बिकॉज एज ए सेड कि आपको किसी ने इन्विटेशन नहीं दिया था, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप खुद आए हो, अपनी मर्जी से आए हो, आपको काम करना है, तो आपको चीज़ों का हैंडल करना आना चाहिए. एंड एज मतलब क्योंकि व्हेन यू मूव टू सिटी लाइक बॉम्बे फ्रॉम अ स्मॉलर सिटी, सडनली आपको बहुत सारा इंडिपेंडेंस मिलता है. सडनली आपको अगर आपको बहुत सारा काम मिल रहा है तो सडनली आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलता है, अटेंशन मिलती है, पैसे मिलते हैं. तो उस सिनेरियो में ये बहुत नॉर्मल है कि ये ह्यूमन नेचर है कि शायद आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा उस वक्त, आप कुछ गलत कर बैठोगे. तो ये सारी चीज़ें इंसान को ही अपने बारे में समझकर उसको वाइजली ठीक करने की ज़रूरत है. मतलब बिकॉज मैं जब नया नया आया था और जब मुझे सडनली बहुत सारा काम मिलने लगा था, तो बाकी और तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ सडनली मेरे अंदर वो आ गया था दैट आई एम समवन, आई एम समबडी, और मैं स्टार बन गया हूँ. मुझे ये फीलिंग आने लगी थी, जबकि मैं तो बिहाइंड द कैमरा हूँ, बट मुझे ये फीलिंग आने लगी थी क्योंकि सडनली बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा था. तो मुझे ये फीलिंग आने लगी थी, एंड उसके लिटरली 3-4 साल में फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई इससे तो मैं अपना काम मैंने ख़राब कर दिया है. मैंने एक्टर से मिलना छोड़ दिया था. अब जब मैं एक्टर्स को मिलूंगा ही नहीं, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, कि मुझे पता ही नहीं कि वो कौन है, तो मेरे को एक्टर्स के बारे में नहीं पता चल रहा था,
तो मैं किसी को पिच कैसे करूँ? कोई मेरे से मांग रहा है कि भाई मेरे को यहाँ का एक्टर चाहिए और मैं उसको कुछ ऑपोजिट पिच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं हूँ नए एक्टर्स को। क्यों? क्योंकि मैं ये सोच कर बैठा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर बन चुका हूँ और मुझे पूरी दुनिया को मेरी ज़रूरत है, मुझे किसी की नहीं है। तो वो हो गया था। बट इस शहर का मैजिक ये है कि ये शहर आपको ना वापस धरती पे भी ले आता है। ये आपको सिखा देता है कि भाई औकात ये है। Right. तो वैसा है। So thank you so much for all those insights and being so frank with us. Thank you so much. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.